before your throne with our worship, Lord Jesus. हमारी स्तुति और आराधना के साथ ये गीत लेकर प्रभु हम आपके सिंहासन पर आते हैं Lord, we come before your throne, Lord, with clean hearts, Lord. और एक शुद्ध हृदय लेकर प्रभु आपके सामने हम उपस्थित हैं We want to repent of our sins, Lord. और जितने भी पाप प्रभु हमसे हुए प्रभु उसकी क्षमा मांगते हैं We know that you love us, Lord. और हम जानते हैं प्रभु कि आप हमसे प्रेम करते हैं And that's why you sent your only Son, Jesus, to die for us. और इसीलिए प्रभु आपने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा So that he could die and we could live freely. कि वो हमारे पापों के लिए मरकर प्रभु जी इसलिए मरे क्योंकि हम आजादी से जी पाए So today we don't worship any man, but we worship the King of Kings. और आज प्रभु हम किसी भी इंसान की प्रभु स्तुति और आराधना नहीं करते परंतु उस परमेश्वर की करते हैं We worship the King that gave his life for his people. और उस राजा की स्तुति और आराधना करते हैं जिसने अपनी प्रजा के लिए अपने लोगों के लिए अपनी जान दी We worship you, Jesus, because there is no one like you. और हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु So let your Holy Spirit help us in this time of worship. और पवित्र आत्मा हमारे सहायता करिए इस आराधना में As we connect with each other in spirit, जैसे हम एक दूसरे के साथ आत्मा में जुड़ रहे हैं we may connect with you also, Lord. उसी तरह प्रभु जी हम आपकी इस आत्मा से आपसे प्रभु जी मेल खा पाए We submit this time into your hands, Lord Father. ये समय आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु As we worship, Lord, let your spirit move in this place and touch each and every one of our lives, Lord. जैसे हम आराधना करते हैं प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा प्रभु जी यहाँ पर मंडराने पाए प्रभु और हमारे हृदय को छूने पाए Father, we give this time into your hands. और ये समय आपके हाथों में प्रभु Come and do what only you can do, Lord. और आइए और वो करिए प्रभु जी जो आपके लिए संभव है Thank you, Lord Jesus. थैंक यू धन्यवाद यीशु शांति
Hallelujah.
Thank you, Father, for this time that we had wonderful time worshiping you, Master Lord Jesus. We bring all our church families and everyone before you, Father, and our pastor, Father, Lord Jesus. Anoint him, Father, with your word. A good word will come, Father, Lord Jesus. Everyone be touched, Father, Lord, with the word God. Thank you, Father, for the wonderful pastor. Thank you for the wonderful people in our church, Father, Lord, that you protected each one of us, Lord. Thank you, Father, for your hand upon us, God. Thank you, Jesus. We love you, Father. We leave this time in your hand, Father. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name. Thank you, Father. We just glorify your holy name. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्य कहते हैं। You are the King of Kings and you are the Lord of Lords. प्रभुओं का प्रभु है और राजाओं का तो राजा है। Greetings to you in the name of our Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से हम आप सबका स्वागत करते हैं। Those who are in Christ have inherited something that we never imagined. जो भी यीशु में है, उन्होंने ऐसा कुछ पाया है जो उनके दृष्टांत से कहीं ज्यादा है। We may not understand it, but we know within what God has done for us is much more than what we can even think of. शायद हमने यीशु को स्वीकारा हो, लेकिन फिर भी हमने पूरी रीति से उसके परिपूर्णता को नहीं समझा है, क्योंकि जो मनुष्य का मन है वो सीमित होता है, पूरी रीति से परमेश्वर और उसकी चीजों को नहीं समझ सकता। So today we'll just start off with some of the basic principles that we had learned at the time of salvation. और इसलिए आज हम कुछ ऐसी बातों को देखेंगे और फिर से याद करेंगे जो हमने सीखा था जब हमने पहली बार यीशु मसीह को स्वीकारा था। Today's message is repentance. आज का शीर्षक है पश्चाताप। What does it mean to repent? पश्चाताप करने का मतलब क्या है? What is the nature of repentance? पश्चाताप का जो गुण है वो क्या है? How does repentance ever evolve? और ये पश्चाताप जो है किस प्रकार से होता है? How do we move from repentance to having faith? और पश्चाताप करने के बाद हमारा विश्वास में हम कदम कैसे रखते We हैं? may think, "Arey, we know repentance and we know all these things," but we need to understand and go deeper, because on repentance then comes faith. हमें पश्चाताप पर जो है और गहराई से जाना इसलिए जरूरी है, क्योंकि जब हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं उसके बाद ही हम प्रभु पर विश्वास करने में कदम रख सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। Repentance in Hebrew, it really means to be sorry. पश्चाताप इब्रानी भाषा के अनुसार उसका अर्थ है कि सच्चे हृदय से जो है किसी चीज को जो आपने किया है उसके लिए हम कहते हैं जैसे हम बहुत ही सॉरी है। It means to be moved to pity. मतलब कि दूसरों की दया हम पर आए, इस प्रकार In से। actual words, it is to turn around. Just turn around completely. या फिर इस प्रकार से कह सकते हैं कि पूरी रीति से आपको मुड़ना है उस चीज से। Like when God is speaking to Israel, he said, "Turn around and live, O house of Israel." जैसे कि परमेश्वर ने जब इज़राइल के घराने से बातचीत किया तो परमेश्वर ने इज़राइल के घराने को कहा कि मुड़ो और जियो। In the New Testament, repentance actually also means a change of mind. नए करार में जो पश्चाताप का ये भी मतलब है कि अपने मन को बदल देना। That's why we say that we have to have the mind of Christ. और इसलिए हम कहते हैं कि जैसे जो वचन कहता है कि हमें यीशु मसीह की तरह अपना मन को बनाना है। There are two things we need to remember in repentance. और पश्चाताप में दो चीजों को ध्यान में रखना है। Repentance is not an emotion.
ये जो पश्चाताप करना ये कोई जो है भावना नहीं है. Many times we have a feeling and we feel that time we need to just have repent and it's not an emotion. It doesn't depend upon a feeling. ये जो है भावना नहीं है कि आप जो है आपको ऐसा जो लगता है उसी समय के लिए कि आपको जो पश्चाताप करना है क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है, सिर्फ वो टाइम के लिए ऐसा नहीं है. And then when your feelings change, your character, everything starts changing. Your thinking starts changing. और फिर थोड़े समय के बाद अगर आपका मन जो बदल जाता है या फिर उस जो आपने किया जो पश्चाताप किया था वो गहराई से हुआ नहीं आपके हृदय से, तो उसमें कोई जो मतलब नहीं. So that's why I'm saying repentance is not an emotion. इसलिए हमने कहा कि जो पश्चाताप करना ये कोई जो है भावनात्मक रूप से नहीं होता है लेकिन सच्चे हृदय से होता है. That repentance is a decision. पश्चाताप आप कर रहे हो ये आपका निर्णय होता है It springs up from the will. जो आपके इच्छा से उमड़कर बाहर आता है I am sorry. कि मैं सॉरी हूँ Lord, I want to turn around. कि प्रभु मैं पश्चाताप कर रहा हूँ इस चीज से मैं मुड़ना चाहता It हूँ. is a change of mind. ये जो है ऐसा करने से आप अपने मन को बदल रहे हो. It's, there are so many conversions that we see. क्योंकि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बदलाव हम जो को देखते हैं And people confess Jesus, but then they turn back. और हम देखते हैं कि अपने मुंह से वो कहते हैं कि हम यीशु को स्वीकार करते हैं लेकिन थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि वो उस निर्णय से पीछे हट जाते हैं. See, salvation was given on a permanent basis, not temporal. लेकिन हमें ध्यान रखना है कि यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार है वो उद्धार का कार्य हमेशा के लिए लागू होता है. ऐसा नहीं है कि थोड़े समय के लिए है फिर बाद में वो लागू नहीं होता है जैसे आप का मन चाहे, ऐसा नहीं. To move ahead, it also means to be born again. That means something newness has come into you. और जो है आपका आगे जो बढ़ना नया जीवन को पाना मतलब कि एक नया व्यक्तित्व आपके अंदर शुरू हुआ है. That means once you are converted, once you have become a believer, you have become a follower of Jesus himself. मतलब कि एक बार जब आपने यीशु पे विश्वास किया, आपने अपना मन फिराव किया, इसका मतलब उसके बाद आप यीशु मसीह के जैसे जीवन जीना शुरू करते हैं. Whatever be your age, it doesn't depend upon an emotion. It depends on a decision between you and God. और फिर इसमें उम्र का कोई सीमा नहीं होता है क्योंकि ये हृदय की बातें हैं जिससे आप निर्णय लेते हो कि आप अभी प्रभु में स्थायी हो. That's why today you see many people stop following Jesus because their decisions were not from the will. और Their इसलिए repentance was from an emotion. बहुत लोग जो है हम देखते हैं वो लोग मुंह से कबूली करते हैं कि यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करना, लेकिन जो है हम देखते हैं वो खाली उसी समय जो वचन सुनते हैं उनको भावनात्मक रीति से जो है वो स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर वो हृदय से उन्होंने नहीं स्वीकारा तो जो है हम नहीं कह सकते कि सच में उन्होंने जो है अपना जो जीवन को बदला है. क्योंकि यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद, अंगीकार करने के बाद, पश्चाताप करने के बाद जीवन का बदलाव दिखाई देना चाहिए. We'll go through a portion of scripture now so that we can get an understanding of repentance. अब हम प्रभु के वचन से देखेंगे ताकि पश्चाताप करने का जो सही अर्थ है हमें समझ में आए कि वो कैसा होता है. We have heard about the parables of Jesus, but here this is prophet Nathan is telling a story. यहाँ पर हम देखते हैं नेथन जो नबी है वो यहाँ पर जो है उसके बारे में जो है एक कहानी है यहाँ पर इस जो वचन में हम देखेंगे. And who do you think he's telling it to? और नेथन नबी जो है एक व्यक्ति से कुछ बातें कह रहा है. We are all aware of David, who is a man after God's heart. हम सब जानते हैं दाऊद के बारे में. बाइबल जिसके बारे में कहता है कि दाऊद का हृदय परमेश्वर के पीछे पीछे चलता था. But at this situation, at this point of time, when the Lord is sending Nathan, there is something wrong in David's life. लेकिन जो है हम देखते हैं दाऊद के जीवन में ये जो घटना घटी थी
यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि दाऊद अपने रास्ते से भटक गया था। उस समय नेथन नबी को परमेश्वर ने भेजा था ताकि दाऊद फिर से रास्ते पर आए। You know, when a product is, something is going wrong, the manufacturer only can repair it, can fix it. जैसे अगर एक चीज में जो है कोई गड़बड़ी हुआ है तो उस चीज को जिसने बनाया है वो ही उसको रिपेयर कर सकता है। And here the Lord, who's the manufacturer, he's sending someone, he's sending Prophet Nathan to David to fix David up. और इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर ने नबी नेथन को भेजा दाऊद के पास ताकि जो चीजें गड़बड़ी हुई है दाऊद के जीवन में उसको परमेश्वर नेथन के द्वारा ठीक करा सके। Many were not seeing it, but God is watching. और चाहे दूसरे लोग इस बात को नहीं देखा हो लेकिन परमेश्वर हर बातों को देखता है और जो है उसकी दृष्टि हमेशा जो मनुष्य पर होता है। Let's go into 2 Samuel 12:1 onwards. अब हम जो पढ़ेंगे 2 शामुएल की पुस्तक अध्याय 12 और पहले वचन। And he came to him and said to him, there were 2 men in one city, one rich and the other poor. लिखा गया है कि जो है वो आया और उसने दाऊद से कहा कि एक शहर में 2 लोग थे, एक अमीर था और एक गरीब था। The rich man had exceedingly many flocks and herds. धनी व्यक्ति के पास तो बहुत से भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, But the poor man had nothing except one little lamb which he had bought and nourished, and it grew up together with him and with his children. It ate of its own food and drank from its own cup and lay in his bosom, and it was like a daughter to him. परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था, और वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वह उसके टुकड़ों में से खाती और उसके कटोरों में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। And a traveler came to the rich man who refused to take from his own flock and from his own herd to prepare one for the wayfaring man who had come to him. But he took the poor man's lamb and prepared it for the man who had come to him. और धनी के पास एक बटोही आया और उसने उस बटोही के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियां या गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसने पास आया था भोजन बनवाया। Now, the Lord had sent Prophet Nathan to speak into David's life. अब यहाँ पर क्या लिखा है कि परमेश्वर ने नेथन नबी को दाऊद के पास भेजा था ताकि दाऊद के जीवन के बारे में उसको कुछ कहे। David himself was very close to God, to Jehovah. हालांकि दाऊद खुद परमेश्वर के करीब करीब अपना जीवन जीता था। So, and after the story, it says in verse 5 that David got very angry when he heard this story. हम देखते हैं लेकिन जो 5वें वचन में ये कहानी जो नेथन नबी ने दाऊद को कहा, ये कहानी को सुनकर दाऊद को बहुत गुस्सा आया। Against that man who took from that poor man. उस अमीर व्यक्ति से वो बहुत गुस्सा हो गया जिसने गरीब व्यक्ति से चीजें ली। And he said that as the Lord lives, the man who has done this shall surely die. और उसने कहा कि जैसे प्रभु जीवित है उसी प्रकार से ये मनुष्य जिसने ये किया है उसकी मृत्यु होनी चाहिए। Now, Prophet Nathan is coming to a point. यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि नेथन नबी जो है अपने मुद्दे पर आ रहा है। And he says to David in verse 7 that you are the man. और 7वें वचन में नबी कहता है दाऊद को कि वो मनुष्य तो तू ही है। Thus says the Lord God of Israel, I anointed you king of Israel, and I delivered you from the hand of Saul. फिर लिखा गया है कि प्रभु इज़राइल का कहता है कि मैंने तुम्हें इज़राइल के ऊपर राजा बनाया था और मैंने शाऊल के हाथों से तुझे छुड़ाया भी था। I gave you everything that belongs to Saul.
और जो कुछ शाऊल का था वो सब मैंने तुझे दे दिया, But yet you have despised the commandment of the Lord. फिर भी जो परमेश्वर के आदेश है उसमें से जो है तुम चूक गए हो। What did David actually do? तो दाऊद ने असल में क्या किया था ऐसा? You have killed Uriah the Hittite with the sword, and you have taken his wife, and have killed him with the sword of the people of Ammon. Verse 9. लिखा है यहाँ पर, हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपना कर लिया और उरिया को अमोनिया की तलवार से मरवा डाला है। Therefore, the sword shall never depart from your house, because you have despised me, says the Lord. इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया है। So he took the wife of Uriah the Hittite to be his wife. That's why God was upset. परमेश्वर दाऊद से खफा था, क्योंकि दाऊद ने किसी और की पत्नी को जो है अपना पत्नी जो बनाया था उसके पति को मार डालने के बाद। Now, Prophet Nathan is speaking directly into David's life. यहाँ पर हम देखते हैं नेथन नबी सीधे दाऊद के जीवन में जो बात करता है। It was never to shame David. ये इसलिए नहीं था क्योंकि वो दाऊद को शर्मिंदगी में डालना चाहता था। When the product is exposed by the manufacturer, it is not to bring shame to the product, but it is to fix the product. क्योंकि जब एक बनाने वाला अपने बनाने वाली चीज को खोलता है तो उसकी जो मरम्मत करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, ना कि उसे नष्ट करने के लिए होता है। Many a times we have our failures, we have our weaknesses, and someone tells us something. It depends who's telling us and whether that word is coming from God. ऐसे ही बहुत सी बार हमारे जीवन में भी होता है कि अगर कोई हमसे कुछ कहता है ताकि हम किसी चीज में और बेहतर हो, लेकिन हमें वो सुनकर अच्छा नहीं लगता है, हालांकि हम जानते हैं कि वो व्यक्ति जो कह रहा है वो सही है, तो जो है उसी प्रकार से यहाँ हो रहा है, क्योंकि दूसरे जो कह रहे हैं इसलिए क्योंकि हम बेहतर हो सके। And David had done it premeditatedly, all these things. लेकिन यहाँ दाऊद ने जो है सोच समझकर ये जो है पूरा जो प्लान जो बनाया था। But God always sends someone to fix the product somehow. लेकिन परमेश्वर हमेशा किसी न किसी को जरूर भेजता है हर एक के जीवन में, ताकि उसको सही रास्ते पर परमेश्वर ले आ सके। Many a times the children of God go in a different track. उसी प्रकार से परमेश्वर के बच्चे कई बार जो है अलग ही दिशा पर निकल पड़ते हैं, And there are all sorts of issues and all sorts of troubles, but God sends a man. और जो हम देखते हैं मनुष्य काफी जो है मुश्किलात चुनौतियों का सामना करता रहता है, लेकिन परमेश्वर भी अपनी मदद हमेशा किसी न किसी के द्वारा जरूर भेजते हैं हमारे लिए। So we need to understand, how did David ever react to that? तो यहाँ पर जो नेथन ने दाऊद को जो है सही दिशा पर लाने के लिए किया, उससे दाऊद ने जवाब कैसे दिया? The main thing here is the reaction. यहाँ पर सबसे जरूरी बात ये है कि दाऊद ने नेतन की बात सुनने के बाद किस प्रकार से जो है उसने जवाब दिया उस कहानी के प्रति। It says that David said to Nathan, I have sinned against the Lord. दाऊद ने किस प्रकार से जवाब दिया कि उसने नेतन से कहा, अंगीकार किया कि मैंने प्रभु के विरोध में पाप किया है। The moment he said that, something happened, something changed. उसी समय जब उसने ये अंगीकार किया, उसी समय उसके अंदर एक बदलाव आया। The moment he said that he has sinned against the Lord, that means he's telling God, I have broken your principles, Lord, now I'm surrendering. मतलब कि जब दाऊद ने अंगीकार किया कि मैंने प्रभु के विरोध में गलती की है, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी मैंने उसे तोड़ा, उसने जैसे ही अंगीकार किया जो है, उसने जो है एक रास्ता जो बनाया अपने क्षमा के लिए। And Nathan said to David, look at the sentence now. और फिर नेतन ने दाऊद को जवाब दिया, The Lord also has put away your sin.
You shall not die. नेतन ने इस पर दाऊद को जवाब दिया कि प्रभु ने तुम्हारे पाप को पीछे डाल दिया है, तुम नहीं मरोगे। So God is fixing the man inwardly. तो हम देखते हैं परमेश्वर दाऊद को अंदर से चंगाई दे रहे हैं, परिपूर्ण बना रहे हैं। See, God never looks at outer appearance, He looks at the heart. क्योंकि परमेश्वर सिर्फ बाहरी रूप को नहीं देखते हैं, वो हमारे अंदर देखता है कि हम अंदर से कैसे हैं। We are judged by how we think within our minds, in our hearts. और हमारा न्याय किया जाएगा उसको ध्यान में रखते हुए कि हम अपने हृदय से और मन से कैसे हैं। But there is a punishment that comes from the Lord later to His child. लेकिन हम देखते हैं कि बाद में उसके बच्चे के ऊपर न्याय आता है। So we need to understand that it is God who can put the judgment on man. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ही मनुष्य के ऊपर न्याय कर सकता है। Many a times we try to judge man. लेकिन बहुत बार एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का न्याय करना चाहता है। But here God is in control. He is control in the house of Israel. लेकिन यहाँ देखते हैं परमेश्वर इज़राइल के घराने के ऊपर नियंत्रण कर रहे हैं। So how was David's reaction to this? तो इस पर दाऊद ने किस प्रकार से अपने आप को रखा, We must go to Psalm 51 for this. इसे देखने के लिए हम भजन संहिता में जाएंगे। David is saying, "Have mercy upon me, O God, according to your loving kindness." दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पे तुम्हारी दया आए तुम्हारे प्रेमीपन के द्वारा। Blot out my transgressions, Lord. मेरे सारे पाप धो दो प्रभु, Wash me thoroughly from my iniquity. मेरे सारे अधर्म से मुझे धो लो प्रभु, Cleanse me from all my sin. मेरे सारे पापों से मुझे शुद्ध कर दो। It should be noted that there are three words here: transgression, iniquity, and sin. यहाँ पर हम देखते हैं अलग अलग जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि पाप, अपराध जो है ये अलग अलग प्रकार से जो है लिखा गया है कि जो पाप के अलग अलग स्तर होते हैं उसके बारे It में, deals with the thoughts, it deals with the words, and it deals with the actions. क्योंकि ये हमारे सोच, हमारे जो शब्द और हमारे कार्यों से जुड़ा हुआ होता है। And verse 3 is so important that it says, "For I acknowledge my transgression." और फिर लिखा गया है कि मैं अंगीकार करता हूँ कि मैंने जो है ये अपराध किए। So the first point of repentance is you need to acknowledge it. तो सबसे पहली जरूरी बात यह है कि आप अंगीकार करो कि तुमने गलती की है। Many a times we do something and we try to justify it. लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जब कोई गलती करते हैं तो हम ये जताने की कोशिश करते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की या फिर जो है हमने जानबूझकर नहीं किया। And he tells God, "Against you, you only I have sinned." और इसीलिए दाऊद कहता है कि प्रभु तुम्हारे विरोध में, तुम्हारे जो आदेश के विरोध में मैंने पाप किया। I may have killed Uriah, I may have taken his wife, but Lord, I have sinned against you. मतलब कि मैंने यूराया का जो है जीवन उससे छीन लिया, उसकी पत्नी को अपना बना लिया, लेकिन जो है असल में मैंने तुम्हारे विरोध में पाप किया है। So God, when he judges, he is so blameless, he speaks the truth. और परमेश्वर जब न्याय करते हैं तो सत्यता में करते हैं। So David is acknowledging. और यही बात जो है हम देखते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर दाऊद अंगीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, वो मान रहा है अपनी गलती। So in repentance, there has to be a turnaround. तो पश्चाताप में पूरी रीति से उस बात से मुड़ना जरूरी होता Let है, it be the gravest sin. चाहे वो पाप कितना भी बड़ा हो। Let it be the worst of it all. When we come to God, we need to just turn around and say, "God, this is it, I acknowledge." चाहे हमने जितना भी जो बड़ा पाप किया हो, कितना भी गंभीर पाप हो, उसके बावजूद चाहे वो जो भी हो, हमें सिर्फ जो है उस पाप से मुड़ना है और परमेश्वर के पास जाकर कहना है, प्रभु हमने गलती की है, हमें क्षमा करो। The number 2 is confession of sin. तो पहली बात थी कि हमें जो है जो मान लेना है कि हमने गलती की,
दूसरी बात, हमें मुंह से कबूल करना है कि मैंने गलती की Say, है। Lord, I am sorry, I've made a mistake. मुंह से कहो कि प्रभु मैं अंगीकार करता हूँ, मैंने गलती की है, मैंने पाप किया है। This is not an easy path. ये आसान नहीं होता है कि मुंह से बोलना कि मैंने गलती की। You know, because the acknowledgement is important. Sometimes we will just confess without acknowledging. क्योंकि हो सकता है कि जो है कुछ लोग सिर्फ जो मानते हैं कि मैंने गलती की है, लेकिन मुंह से फिर नहीं बोलना चाहते हैं कि मैंने गलती See, in की। the acknowledging stage, it takes time because there is a tussle. There is something that there are conflicts inside of you that you do not want to say that you are wrong. क्योंकि जो है मनुष्य के अंदर जो है वो जैसे एक जो संघर्ष होता है कि मैं खुले रीति से मानूं कि मैंने गलती की है, या जरूरी नहीं है कि मैं दूसरों के सामने मान लूं। ये जो संघर्ष होता है, लेकिन जरूरी है, जैसे वचन कहता है कि अंगीकार करना जरूरी है। That's why the repentance is the setting of being free. और इसीलिए हम कहते हैं कि पश्चाताप से जब हम सच में पश्चाताप करते हैं सही मायने में, तो ही हम आजाद होते हैं पूरी रीति से। So once we confess the sin, then we ask God, you forgive me. और फिर जब हम मुंह से कबूली करते हैं कि हमने गलती की है, तब बाद में हम प्रभु से कहते हैं मुझे क्षमा कर। See, when we stand before our God, when we are before His throne, it is the throne of grace. क्योंकि जब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने आते हैं, तो हमें याद रखना है कि परमेश्वर का सिंहासन अनुग्रह से भरा है हमारे लिए। And when God forgives, He knows how to, deal with us and put things in order. और जब हम अंगीकार करते हैं और परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं उस पाप के लिए, तो परमेश्वर जानते हैं कि किस प्रकार से उस सारी चीजों को अपने सही स्थान पर लाना है। The fourth thing is to turn away from that sin. चौथी बात है कि उस पाप से पूरी रीति से मुड़ना है। That we will not do it again. मतलब कि मैं वो पाप, वो गलती फिर से नहीं करूंगा। So we need to understand that it is not just acknowledging. We have to move towards another step of confessing, then of asking for forgiveness, and then turning away from it. और इसलिए हम देखते हैं ये जो प्रक्रिया होती है कि सबसे पहले हमें मान लेना है कि हमने गलती की है, फिर हमें मुंह से कबूल करना है कि हमने गलती की है, फिर क्षमा मांगना है, और उसके बाद जो है उस पाप से मुड़ना है, तय करना है कि ये मैं फिर से नहीं करूंगा। See, there is no shortcut in this way of life that Jesus has taught us. और हम देखते हैं कि यीशु ने जो भी शिक्षण हमें दिया है उसमें कोई शॉर्टकट का रास्ता नहीं होता है। And the fifth one, then the restoration will come. ये सब करने के बाद पांचवी बात होती है कि हम फिर से स्थापित किए जाते हैं प्रभु के द्वारा। In repentance, we may weep, we may be in sorrow, we may be in pain, we may be in grief, we may be in mourning, but we need to acknowledge before God till God says, fine. तो पश्चाताप की प्रक्रिया में जब हम पूरे हृदय से क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगने के दौरान जो है हमारा हृदय दुखी होता है कि हमने उस बात को किया, उसकी वजह से आंसू भी हमारे आंखों से बहने लगते हैं। हम जो है पूरा जो पश्चाताप करते हैं कि हमने वो किया है, लेकिन अब हम वो नहीं करना चाहते, हमने कैसे कर दिया, जो है अब ये फिर से मेरे जीवन में नहीं होगा। ये सारा अंदर से जो है निकल कर आना चाहिए पूरे सच्चे हृदय से, तब वो बदलाव आता है जिसकी वजह से फिर से हम स्थापित किए जाते हैं। So it's like you are in an operation theater and the doctor is working on you. जैसे कि आप ऑपरेशन थिएटर में हो और आप उस ऑपरेशन के टेबल पर हो और डॉक्टर आपके ऊपर जैसे ऑपरेशन कर रहा है, उसी प्रकार से होता है। David is saying, Lord, you search me and you find something. That so we are before our God, let Him search us. Because many a time we may not find the wrong that we do. क्योंकि जो है जैसे दाऊद ने कहा कि प्रभु तू ही मेरे अंदर देख ले, तू ही मेरे अंदर जांच कि मेरे अंदर क्या क्या गड़बड़ियां हैं। क्यों दाऊद ने ऐसा कहा? क्योंकि मनुष्य अगर खुद को जांचता है तो खुद को जो है छूट लेता है काफी सारी चीजों के ऊपर, लेकिन जो है जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि आप जांचो प्रभु, जो कोई भी अशुद्धता है प्रभु आप ढूंढ कर निकाल दो मेरे जीवन से वो सारी बातें, तब जो है सच्चे हृदय से हम जो है पूरा
संपूर्णता चाहते हैं प्रभु के द्वारा। That's why this type of repentance is not on emotion, it is on the will. It is on actually knowing that you are wrong. और इसलिए सिर्फ भावना में बहकर हम उस क्षण के लिए क्षमा नहीं मांगते हैं, लेकिन सच्चे हृदय से हम क्षमा मांगते हैं ताकि फिर से हम जानबूझकर वो गलती न करें। हमारी इच्छा हम रखते हैं कि मैं अब वो फिर से नहीं करूंगा। In fact, it is a decision when you are making. ये एक निर्णय होता है जो आपको लेना है कि मैं ये फिर से नहीं करूंगा। You know, there is an old song that we used to sing, I have decided to follow Jesus. जैसे वो पुराना गीत हम जो गाते थे कि प्रभु मैंने निर्णय लिया है, यीशु के पीछे मैं चल रहा हूँ। No turning back. और यीशु के पीछे चलते समय मैं फिर से पीछे मुड़कर नहीं The देखूंगा। cross before me, the world behind me. क्रूस मेरे सामने होगा, दुनिया मेरे पीछे। So that's why we need to have the cross always before us. और इसलिए हमारी दृष्टि हमेशा यीशु मसीह के क्रूस पर होना चाहिए। Many a times we are so overconfident on our own selves. लेकिन कई बार जो है हमारा विश्वास खुद के ऊपर होता है, ना कि प्रभु के ऊपर। And we think that what we live such a righteous life. But sometimes God corrects us. और लोग सोचते हैं कभी-कभी कि मैं अपना जीवन तो धार्मिकता से जी रहा हूँ, लेकिन सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमें इस गलत फहमी से जो है हमारी आंखों को खोल सकता है। So repentance, it springs up from our will. तो जो है जो पश्चाताप हमारी इच्छा से होता है। It is a good intention that comes out of our own. और ये सच्चे हृदय से निकलता है, हमारे ही अंदर से। किसी ने बोला इसलिए करने के लिए इसलिए नहीं, लेकिन हमारे हृदय से वो जो है पश्चाताप करने की भावना निकलती है। That's why we don't depend on our feelings at salvation. We believe that the cross, that the story that Jesus is alive. We believe that he came down, he died on the cross, he shed his precious blood, and there was remission of sins. This is all true. और इसलिए जब हम उद्धार को पाते हैं, उद्धार यानी कि जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तब हम जो है हम पूरी रीति से मान लेते हैं, इस बात को समझते हुए कि यीशु मसीह दुनिया में आए थे सारी पृथ्वी के पाप को जो है निकालने के लिए, उसका जो दंड अपने ऊपर लेने के लिए, ताकि मानव जाति को क्षमा मिल सके, अनंत जीवन मिल सके यीशु मसीह के कार्य के द्वारा। When we do not repent, we are living to please our own self. और जब हम ऐसे सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं, इसका मतलब है कि हम जो है खुद की इच्छा से, खुद के आनंद के लिए नहीं जीते हैं, लेकिन प्रभु के लिए जीना चाहते हैं। Today in the kingdom of our Lord Jesus Christ, we have to governed by his laws and his principles. और यीशु मसीह के राज्य में होने के नाते परमेश्वर का नियंत्रण हमारे जीवन में होना चाहिए, ना कि हमारा नियंत्रण। Otherwise, we'll become like a double-minded person. नहीं तो हम जो है दोहरा मन रखने वाले मनुष्य हो जाएंगे। Otherwise, we'll be tossed this side and we'll be that side. जिसकी वजह से कभी यहाँ कभी वहाँ जो है भटकते रहेंगे। And that's why there are a lot of problems in our faith. और ऐसा जब होता है तो विश्वास में डगमगाहट आती है। Many people talk about faith, only believe, just have faith. But faith comes only after repentance. बहुत लोग कहते हैं कि बस विश्वास करो, लेकिन ये विश्वास जो है पापों का पश्चाताप करने के बाद ही वो विश्वास का सही मायने हमें समझ में आता See, है। many times in giving the gospel of Jesus Christ, we say you only believe in Jesus and things will happen. But let me tell you today, repent and believe. So belief comes later, faith comes later. It is repentance that comes first. हम जो है जब हम सुसमाचार देते हैं लोगों को, तो हम उनको कहते हैं कि बस यीशु पे विश्वास करो और हो जाएगा सब कुछ। लेकिन जो है सुसमाचार का पहला कदम है कि अपने सारे पापों से पश्चाताप करना, प्रभु से क्षमा मांगना कि हमने गलती की है, प्रभु मुझे क्षमा करो, और फिर प्रभु पर विश्वास करो, उसने जो क्रूस पर किया है। फिर वो विश्वास जो है सही में विश्वास कहलाता है। See, I'll show you something in Hebrews 6:1 onwards. इब्रानी अध्याय 6 पहले वचन से हम देखेंगे। The Bible says, leaving the elementary things of Christ. लिखा गया है कि जो चीजें शुरुआती थी वो सारे छोड़कर Let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works. परिपूर्णता में हमें जो है जाना है, And of faith towards God.
of the doctrines of baptism, of laying on of hands, of resurrection of the dead, and of eternal judgment. इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डाले। In these two verses are the 6 basic doctrines that we ought to follow and know. इन बातों में हम देखते हैं 6 सिद्धांत है परमेश्वर के जो हमें जान लेना है कि हमें किस प्रकार से उन चीजों को करना है। And it starts with what? Foundation of repentance. सबसे पहले है पश्चाताप का नींव डालना। Then it starts with faith towards God. उसके बाद है परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास रखना। Then we see the doctrine of baptisms. और फिर हम देखते हैं कि बपतिस्मा लेने का सिद्धांत आता है, Then we see the resurrection of the dead. जिसकी वजह से मृत्यु से जो है पुनरुत्थान हमको मिलता है। And then it takes you to the ultimate, that is the eternal judgment. और फिर हमें ले जाता है अनंत न्याय की तरफ। So it starts with repentance. तो शुरुआत होता है पश्चाताप It से। doesn't start with faith. विश्वास से शुरुआत नहीं होती है, That's a shortcut. वो शॉर्टकट का रास्ता होगा। We don't want shortcut. हमें शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाना Jesus है, never taught a shortcut. क्योंकि यीशु ने शॉर्टकट का जो रास्ता अपनाने के लिए हमें जो है उकसाया नहीं। He says repent and believe, for the kingdom of God is at hand. He didn't say believe, he said repent first. यीशु ने कहा कि पश्चाताप करो और विश्वास करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। Many times the gospel giving is with belief. It's actually with repentance and followed with belief. हमारा सुसमाचार इसलिए सिर्फ विश्वास पर नहीं होना चाहिए, लेकिन पश्चाताप करो और विश्वास करो ऐसा होना चाहिए। See, faith is based on the repentance. क्योंकि हमारा विश्वास जो है पश्चाताप के नींव पर ही टिका हुआ होता है। We always come on that scripture, without faith it is impossible to please God. But faith needs repentance. हम हमेशा वो जो वचन का इस्तेमाल करते हैं कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, लेकिन जो है ये विश्वास कब आता है? जब हम पश्चाताप करते हैं पापों से, उसके बाद ही विश्वास कार्यशील होता है। Otherwise you may have faith, it may not work out because there was no inward change. क्योंकि अगर अंदरूनी रीति से वो बदलाव आता नहीं है तो वो विश्वास कहाँ से उमड़ आएगा जिसकी वजह से बदलाव आए। That's why many people tend to believe in God but then fall away. जिसकी वजह से जो है यही कारण है कि बहुत लोग कहते हैं कि वो विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो प्रभु से दूर हो जाते हैं। And here the author of this Hebrews is saying is leaving elementary, but in verse 3 he says, and this we will do if God permits. और तीसरे वचन में वो कहता है कि ये सारी चीजें हम करेंगे अगर प्रभु की अनुमति हो तो। What does he mean that if God permits? मतलब क्या है कि अगर प्रभु ने अनुमति दी है तो। You know, I remember a man of God saying something like this. मुझे याद है परमेश्वर के एक दास ने इस प्रकार से कहा था You know, when you want to build a building, कि जब आप एक इमारत को बांधना चाहते हो first you have to see that the foundation is ready. तो सबसे पहले आपको देखना है कि नींव पूरी रीति से तैयार है, And then you can build, फिर उसके ऊपर इमारत को बांधना शुरू कर then you सकते can color, हैं, फिर उसके ऊपर जो रंग आप डाल सकते and you can do all sorts of decoration. हैं और फिर उसका डेकोरेशन कर सकते हैं। But the foundation is important. सबसे जरूरी बात एक इमारत में उसकी नींव होती है, And that's why it says it's the foundation of repentance. और इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि पश्चाताप की नींव होती है। That's why faith has to be built on the foundation that is repentance. और इसलिए विश्वास की इमारत को पश्चाताप की नींव पर बांधना जरूरी होता See, है। without the forgiveness and the repentance, nothing can be achieved. क्योंकि जो है पापों की क्षमा जो पश्चाताप करने की वजह से हमको मिलता है वो जरूरी है, जिस पर बाद में हमारा विश्वास मजबूत हो सके। Today, many sorts of false doctrines are going from here to that side. आजकल हम देखते हैं कि इस युग में काफी सारे गलत शिक्षण यहाँ वहाँ सुनने में आता है, Because of the misinterpretation of scripture. क्योंकि वो लोग प्रभु के वचन को तोड़ मरोड़ कर अपने हित के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। Because they want to show people there is a shortcut. क्योंकि वो जो लोग
लोगों को ये जताना चाहते हैं कि यहाँ वहाँ शॉर्टकट के रास्ते अपनाए जा सकते हैं, But it always starts with repentance and then faith. लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा पश्चाताप से शुरुआत होती है, जीवन का बदलाव, और फिर विश्वास पर हम कदम रख सकते हैं। I'll show you in the same book of Hebrews, chapter 12. इब्रानी पुस्तक में ही हम देखते हैं 12वें अध्याय में It says in verse 16, 16वें वचन में यूं लिखा गया है, speaking about Esau, फिर बाद में यहाँ पर हम देखते हैं ईसाऊ के बारे में लिखा गया है, who for one morsel of food sold his birthright. जिसने जो है थोड़े भोजन के लिए अपना जन्म अधिकार बेच दिया। Then it says, for you know that afterwards, when he wanted to inherit the blessing, और फिर हम जानते हैं उसके बाद जब वो अपने आशीष को जो पाना चाहता था, he was rejected, उसको वो नहीं दिया गया, for he found no place for repentance, though he sought it diligently with tears. उसने पश्चाताप करने के लिए कुछ नहीं किया, हालांकि आंखों से आंसू बहे। You understood? He found no place for repentance, although he sought it diligently. You may cry, but if there is no repentance within, faith makes no headway into your life. इसका मतलब सिर्फ इसलिए क्योंकि आंसू आंखों से बहे, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सच में पूरे हृदय से पश्चाताप किया हो। You can jump, you can clap, you can dance, you can do whatever you want, but if there is no repentance, there is a problem in your journey in following Christ. मतलब कि बाहरी रीति से आप जो भी कर रहे हो वो जो है ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन आपके हृदय से जो निकलता है वो ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि वो यीशु मसीह के सामने सच्चाई होती है। You know, in Luke 15, Jesus is telling a parable. लूका 15 में यीशु एक कथा कह रहे हैं। He's talking about a man who had two sons. यहाँ पर वो एक कहानी कह रहे हैं जहाँ पर एक मनुष्य के दो बेटे थे। The story could be said as the prodigal son or a very caring father. इस कहानी का शीर्षक जैसे लोग देते हैं कि भटका हुआ बेटा या बहुत ही प्रेमी पिता। And the younger son came to his father and asked him for his portion of whatever belonged. इस कहानी में छोटा बेटा जो है वो पिता के पास जाकर कहता है कि मेरे हिस्से का जो भी है वो मुझे दे दो। And the son left the father. और उस बेटे ने अपने हिस्से की जायदाद लेकर पिता को के घर को छोड़कर वो जाता है। Bible says he spent all of it. और बाइबल कहता है कि वो सारा धन जो वो लेकर गया था सब उसने खर्च कर दिया। And then a severe famine came in that land. और बाद में अकाल आता है पूरे जो है उस जगह के ऊपर। See, when you leave your father's house, whichever land you go to, there will be famine, there will be plague. That's why we need to be in our father's house, the house of God at all times. हमारे पिता के घर यानी कि हमारे परमेश्वर पिता के घर में हमेशा रहना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम अपने पिता के घर से भटक जाते हैं तो जो है बाहर की दुनिया अकाल जैसा होता है, जिससे जो है सिर्फ जो है चीजों की नाश होती है। That's why the righteous run into it and they are saved. और इसलिए धर्मी लोग जो है दौड़कर जो है उसके पास जाते हैं, परमेश्वर के पास, और वो वहां पर सुरक्षित होते हैं। That's why we need to be in the ark of Christ. The moment we leave and we go elsewhere, there is a problem. इसलिए यीशु मसीह के शरण स्थान में हमेशा रहना है, जहाँ पर हम सुरक्षित होंगे। वहां से अगर निकल कर बाहर जाएंगे तो जो है वहां पर सारी गड़बड़ियां हैं। And then what happened? कहानी में आगे क्या होता है? He joined himself to a citizen of that country. He left citizenship from here and he went to a citizenship of that country. अपने पिता- Look at the word, what is the saying? लिखा गया है यहाँ पर कि वो उसने अपने पिता की नागरिकता को छोड़कर जो है दूसरे देश का नागरिक हो गया। This was a grave problem. ये जो है हम देखते हैं कि उसने बहुत ही गंभीर कदम लिया ऐसा करके। And then he had to feed the swine. वहाँ पर हम देखते हैं बाद में उसको सुअरों को भोजन देना पड़ा And he वहाँ had पर, to also eat the same food. और वही भोजन वो भी खा रहा था उस देश में। But the Bible says when he came to his senses, और फिर लिखा गया है बाइबल में कि जब उसका
दिमाग ठिकाने आ गया। How many of my father's hired servants have bread enough to spare and I perish with hunger? तब उसे खुद महसूस हुआ कि मेरे पिता के यहाँ जो नौकर है उनके पास भी इतना सारा भोजन है और मैं देखो इस देश में यहाँ किस प्रकार से जी रहा हूँ। I was a son over there in that particular country, in that home, but now I've got citizenship here and I'm hungry. If I was there, it would have been different. उसने इस बात को समझ लिया कि मेरे पिता के यहाँ मैं उसका बेटा था, सारी चीजें वहाँ पर थी और यहाँ पर जहाँ पर मैं दूर आया हूँ दूसरे देश में, यहाँ पर मेरा जीवन कैसा है, वहाँ पर मेरे पिता के यहाँ ही अच्छा था। Something that struck me says that I will arise and go to my father. He has acknowledged, yes, I was wrong. और जब उसे ये महसूस हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ उसे, तब उसने तय किया कि मैंने सच में गलती की है, मैं ऐसा करूंगा, मैं वापस अपने पिता के पास जाऊंगा। I'm ready to become a servant also over there. चाहे मेरे पिता के यहाँ मुझे एक दास ही बनकर क्यों ना रहना पड़े, लेकिन वहीं पर मैं अच्छा रहूंगा। Many a times we come to such a low point and we say, Lord, accept me wherever you want to put me, Lord. उसी प्रकार से हम भी कभी कभी परमेश्वर के पास जो है जब हम आते हैं, हम कहते हैं कि प्रभु कैसे भी करके बस मुझे अपने पास रखो, चाहे मैं किसी भी हालत में रहूं। And David says, I will rather be a doorkeeper in the house of the Lord. जैसे कि दाऊद ने कहा कि मैं परमेश्वर के मंदिर का दरबान भी होना पसंद करूंगा जब तक कि मैं जो है उसके मंदिर के अंदर हूँ। But God's idea is never to put us down. लेकिन परमेश्वर की सोच ऐसे नहीं होती है कि मनुष्य को इस प्रकार से निचले स्थान पर रखे। God's idea is to bring us to our senses, to fix us so that we may be on the right road, on the right track. परमेश्वर हमेशा ये दृष्टांत रखते हैं कि वो मनुष्य को हमेशा अपने पास रखना चाहता है। वो चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर के करीब भी जीवन रहे, परमेश्वर के करीब रहते हुए अपना जीवन जिए, ना कि परमेश्वर से दूर रहकर अपना जीवन जिए। And you see that he spoke to his father that I have sinned against heaven. और यहाँ पर जो बेटा अंगीकार कर रहा है, ये स्वीकार कर रहा है कि मैंने स्वर्ग के खिलाफ जो पाप किया है ऐसा करके। Father, I have hurt you, but actually I have sinned against heaven. मतलब कि उसने ये एहसास किया है कि उसने अपने पिता को दुख पहुंचाया है, लेकिन इससे ये भी एहसास हुआ है कि मैंने ऐसा करके प्रभु के खिलाफ में गया And I am no longer worthy to be your son. और इसलिए अब मैं तुम्हारा बेटा कहलाने के लायक नहीं रहा, वो कहता है। But the father is so graceful, so loving. लेकिन पिता जो है वो बहुत ही प्रेमी है, अनुग्रह से भरा पिता है। Many a times we return to God and we say, God, now whatever it is, you just give us this, that's it. बहुत बार जब हम पश्चाताप करते हैं तो हम कहते हैं प्रभु अभी आप जो भी जैसा भी रखो जो है प्रभु, लेकिन बस मुझे क्षमा करो और मैं वापस आपके पास आना चाहता हूँ। Take me out of this, Lord, and just whatever it is. और प्रभु मुझे इस चीज से बाहर निकालो प्रभु, कैसे भी करके, फिर बाद में जो भी होगा फिर ठीक है। But God has the best for us, even at this time. लेकिन आपको ये जान लेना है कि हर परिस्थिति में चाहे जो कुछ भी हुआ हो, परमेश्वर के मन में उत्तम योजना ही होता है अपने बच्चों के लिए, इसके बावजूद कि उन्होंने क्या किया। We may be sailing on a boat with falls. चाहे हम नाव में जा रहे हैं जहां पर जो है अलग अलग नकारात्मक चीजें हो, Many failures that have befallen us. या फिर बहुत सारे हार का सामना हमने किया हो, Many storms that has come our way. या बहुत सारे तूफानों का हमने सामना किया हो, And we have been drifted here and there, tossed here and there. जिसकी वजह से उस तूफान में हम यहाँ वहाँ भटकते रहे। We do not know what our future will hold. हम नहीं जानते हमारा भविष्य कैसा होने वाला है। But this son recognized one thing, my future is in my father's house. लेकिन इस बेटे की तरह हमें जान लेना है कि हमारा भविष्य परमेश्वर के घर में ही है। I'm going back to my family. और इसलिए हमें तय करना है कि मैं फिर से अपने परिवार के पास वापस No जाऊंगा। matter whatever happens, I am going back. I cannot stay outside too long. चाहे जो भी हो, हमें वापस पिता के घर जाना है, बहुत समय तक बाहर नहीं रह सकते हैं। Brothers and sisters,
इसलिए We भाइयों are बहनों, in the family of God. हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हो चुके No हैं। matter whatever happens, we have to stick tightly with each other. These are different days. और इसलिए चाहे जो भी हो हमारे साथ या आसपास, हमें एक दूसरे के साथ रहना है, खासकर इन दिनों में, इन जो है बहुत ही जो मुश्किल दिनों में। If God is cautioning us, if God is speaking to us something, He doesn't want to put us down. He wants to lift us. He wants to fix us. और अगर परमेश्वर हमारे हृदय से कुछ कह रहे हैं तो ये हमें नीचे डालने के लिए नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमें परिपूर्ण बनाना चाहता है, संपूर्ण बनाना चाहता है हर प्रकार से। See the young man who left his father and he came to his senses. He had an inward decision that he made. ये छोटा बेटा जो तय करता है कि मैं फिर से मुड़ूंगा, अपने पिता के घर जाऊंगा फिर से, उसके अंदर से उसने ये निर्णय किया कि मैं जाऊंगा। My inward decision was, Lord, I have made a mistake. उसके हृदय से उसने ये एहसास किया कि मैंने गलती की है, The outward act is, I'm going to return back. जिसकी वजह से बाहरी उसका कार्य था कि वो कदम लेता है अपने पिता के घर वापस जाने के लिए। Let anyone say anything, but I'm returning, Lord. चाहे कोई कुछ भी कहे, हमने तय किया है हम अपने पिता के घर वापस जाएंगे। See, David was the same thing. He made a mistake. दाऊद ने भी ऐसा किया, उसने भी जो है इस बात को माना, उसको एहसास हुआ उसकी गलती के बारे में, He immediately acknowledged. और इसीलिए तुरंत उसने जो है अपनी गलती को माना, अपने पाप को स्वीकारा कि हाँ मैंने किया। See, we have a good and loving God who disciplines us. He cares for us, but He also wants to fix us. हमारा पिता परमेश्वर जो हमसे बहुत प्यार करता है, वो चाहता है कि हम सही दिशा पर चले। So, let us acknowledge, let us know that repentance is the foundation of Christianity, and then it moves up to faith. और इसीलिए हमें ये सबसे पहले जान लेना है कि पश्चाताप जरूरी है हर पाप से, और फिर पश्चाताप करने के बाद हमारा विश्वास पूरी रीति से यीशु मसीह पर दृढ़ रखना। So, we need to understand that our God is waiting for us. तो हमें ये समझना है कि हमारा परमेश्वर हमारा इंतजार हमेशा करता है कि हम वापस उसके पास आए। Many cults, some cults believe that why we need to make confessions today. कुछ ऐसे गलत शिक्षण भी जो है कुछ लोग देते हैं, वो कहते हैं कि बार बार प्रभु के पास क्यों जाना जरूरी है। You know, the moment we repent and we confess and say, God, I am there before you, God will act. लेकिन हम देखते हैं वचन से कि जितना हम पश्चाताप करते हैं अपनी गलतियों के लिए, जब भी हम गलती करते हैं, पाप करते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं तो पश्चाताप करने की वजह से फिर से हम परमेश्वर के पास जो है जुड़ जाते हैं, और जो है फिर हम परमेश्वर के पास जो है वापस जाकर जो है उससे मिलते हैं प्रभु से। Today the good news is that Jesus is once again saying, repent and believe, for the kingdom of God is at hand. आज फिर से प्रभु याद दिला रहे हैं हमें कि चाहे कोई भी गलती किया हो या पाप किया हो, पश्चाताप करो, उस चीज से मुड़ो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। Repent and be baptized, each one of you. इसीलिए पश्चाताप करो और विश्वास करके बपतिस्मा लो। There is no shortcut. इसमें कोई शॉर्टकट का रास्ता नहीं है। The word of God is not to make someone happy. और परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना है किसी को खुश करने के, The word of God is for people to get back on track. लेकिन वचन का इस्तेमाल करना है ताकि मानव जाति सही रास्ते पे चल सके। To understand what is the Father's heart at this very moment. ये जानने के लिए कि स्वर्गीय पिता का हृदय हमारे प्रति कैसा है। The whole world is going through all sorts of crises. पूरी दुनिया अलग ही जो है जो परिस्थिति से गुजर रहा है। You know, but we need to understand that we have to continue to communicate with our God. इसलिए आज हमें समझना है इस बात को कि हमारा संपर्क हमेशा हमारे परमेश्वर के साथ हो, ऐसा होना चाहिए। And Father, this day we just surrender our lives to you. इसलिए पिता, हम अपना जीवन आपके हवाले अर्पित करते हैं। We come before you, my God. परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं। You are a good and loving Savior. आप एक
प्रेम करने वाले उद्धार करता है। And Father God, we thank you for sending your only begotten Son, Jesus. और पिता आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। That He shed His precious blood for the remission of sins. और उसने अपना लहू बहाया ताकि हमारे पापों से हम शुद्ध हो सके। That His body was broken, that by His stripes today we are healed. और उसका शरीर तोड़ा गया ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो सके। Father, and today we come at the altar. और इसलिए हम वेदी के सामने आते हैं इस समय प्रभु, Lord, we acknowledge, Lord, और हम अंगीकार करते हैं all our failures, our faults, हमारे सारे पाप, हमारी गलतियां committed against man and committed against you, Lord. मनुष्य के विरोध में, आपके विरोध में प्रभु, Or committed against anything, Lord, या किसी भी प्रकार से किसी के भी विरोध में ऐसा हमने कुछ किया that हो has grieved your Holy Spirit. जिससे पवित्र आत्मा को दुख पहुंचा हो। Father, we ask you, Lord, for forgiveness. प्रभु हम क्षमा मांगते हैं इस हर चीज के लिए। Father, we pray, Father, and we acknowledge, Lord, हम अंगीकार करके प्रार्थना करते हैं प्रभु, to set things right and then put in order, Lord. अब सारी चीजों को फिर से सही जगह पर ले आओ प्रभु। Our relationship with you and our relationship with those around us. हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ और आपके साथ प्रभु आप फिर से स्थापित कर दो। Strengthen us in the faith, my God. विश्वास में हमें दृढ़ बनाओ प्रभु, Refresh us, my God. हमें ताजगी से भर दो प्रभु। Do a cleansing work in our lives, oh God. हमारे जीवन में एक शुद्धिकरण ले आओ प्रभु, Continue to wash us daily, God, as we come to you. और रोज हमारे जीवन में हमें शुद्ध करो जैसे जैसे हम आपके पास आते हैं प्रभु, Father, you are the one that we can come before at all times. क्योंकि आप ही हो परमेश्वर जिसके पास हम हमेशा आ सकते हैं। You are the one who can resurrect the things that are dead in our lives. और जो भी चीजें मृत हो चुकी है हमारे जीवन में, उन चीजों को फिर से आप ही जीवित कर सकते You हैं, are the one who can revive us, Lord. क्योंकि आप ही हमारे अंदर वो जान डाल सकते You हैं। are the one who can refresh us, Lord. आप ही है जो हमारे जीवन को ताजगी से भर सकते You हैं। are the one who can restore things back to us, Lord. आप ही है जो सारी चीजों को फिर से पुनर्स्थापना कर सकते Father, हैं। we thank you, Lord, for your word and repent and believe, for the kingdom of God is at hand. इसलिए हम धन्यवाद करते हैं आपका वचन जो कहता है कि पश्चाताप करो और विश्वास करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। Father, we ask you, Lord, to forgive us once again. इसलिए हम क्षमा मांगते हैं प्रभु फिर एक बार हमारे सारे पापों के लिए, So that our faith in you would be built much stronger. ताकि हमारा विश्वास आपके ऊपर और मजबूत हो जाए, So that we can tell it out into the world, Lord. ताकि हम दुनिया में भी इस बात को घोषित करें Lord, that you are King, that you are Savior. कि तू राजा है, उद्धार करने वाला परमेश्वर है। Father, at this time we just acknowledge और इस समय हम खुद अंगीकार करते हैं your plan for our lives. आपकी सारी योजना जो आपने हमारे जीवन के लिए बनाई है। If you are watching for the first time, और आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, we need you to tell you that you need to repent for all your sins. हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने सारे पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगो। And only then that the blood of Jesus can wash us and cleanse us. सच्चे हृदय से जब आप ऐसा करोगे तो यीशु मसीह का लहू जो उसने क्रूस पे बहाया है उसके द्वारा आपको शुद्ध किया जाएगा। And we can go one step further and believe that Jesus Christ is the Lord. आगे एक और कदम लेकर आप विश्वास करो कि यीशु मसीह प्रभु है, So that we may enter the kingdom of eternal life everlasting. ऐसा करने से आपको अनंत जीवन मिल जाएगा। Father, we thank you, Lord, for the blessed assurance that we have in you. और प्रभु धन्यवाद इस अनंत आशा के लिए जो आप में हमें मिला है। प्रभु Bless your people. आपके सारे लोगों को आशीषित करो पिता Touch each one of परमेश्वर। them. हर एक को आप स्पर्श करो पिता, No sickness, no disease, no plague would come near their tents. ताकि कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी या कोई भी ऐसी चीजें हमारे तंबुओं के आसपास भी नहीं भटके। प्रभु Lord, we turn around and look to you, for you are the author and the finisher of our faith. हम मुड़कर अपनी दृष्टि आपके ऊपर लगाते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारा विश्वास को बनाने वाले आप है। प्रभु Father, unite us, Lord,
today, Lord, हम सबको एक मत बनाओ प्रभु आप में so आज that के we दिन, can stand together, Lord. ताकि हम एकता से खड़े रह पाए। Lord, and we pray for the world today, Lord. और पूरी दुनिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु, Touch every corner, Lord. पृथ्वी के छोरों तक परमेश्वर आप अपना स्पर्श भेज, Let the power of your word go forth in every place, Lord. और आपका वचन का सामर्थ पूरी पृथ्वी पर भेज दो प्रभु। Father, we pray, Lord, changes in the lives of your people, Lord. हम प्रार्थना करते हैं आपके लोगों के जीवन में बदलाव आ जाए पिता, Lord, that your word, Lord, would bring us to true repentance. और आपका वचन सच्चे हृदय की क्षमा ले आए Take परमेश्वर। away, Lord, every kind of pretense and every thing, Lord, that tries to just cover things up, Lord. हर प्रकार का बाहरी जवाब या बाहरी कार्य जो है या ऊपरी शब्द को निकाल दो प्रभु, ताकि हृदय से बातें निकले, Father, and let your joy be our strength. और आपका आनंद हमारा बल हो जाए। We thank you, God. We give you all glory, honor, and praise. सारी महिमा आदर और स्तुति आपके नाम की हो प्रभु। Continue, Lord, so that your loving kindness, Lord, would surround your people. और परमेश्वर निरंतर आपका प्रेमीपन, आपका अनुग्रह, आपकी दया और कृपा हर एक को ढाके हुए रखे। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित कर, May you always be fruitful. हमेशा आप फलदायी बनो। May you always have the joy of the Lord. प्रभु का आनंद से आप हमेशा भरे हुए May रहो। you always see the goodness of our God. प्रभु की भलाई हम हमेशा आपके जीवन में रहे, May the refreshing of God come over your और life. प्रभु का ताजगी आपके जीवन में आ जाए। May the things of God always cover you. परमेश्वर की भलाई से हमेशा आप ढके हुए रहो, May this word always encourage you. और ये वचन हमेशा आपको प्रोत्साहन दे, May it sink into your hearts and let it, the faith be birthed out of it. और ये वचन आपके अंदर हृदय की गहराई में जाकर वहां से फल को ले आए। We bless each one of you. हम आप सबको आशीषित करते हैं इस समय। May the goodness of God always be with you. प्रभु की भलाई हमेशा आपके ऊपर रहे। Be blessed. आशीषित हो जा। Shalom. शालोम। Until we meet again next time. जब तक हम फिर से मिले। A certain man had 2 sons. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat, and no man gave to him. And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father's have bread enough and to spare? I will go to my father. I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. And he arose and came unto his father. But when he was yet a great way off,
his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, Bring forth the best robe and put it on him. Put a ring on his hand and shoes on his feet. And bring hither the fatted calf and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to be merry. Now his eldest son was in the field. And as he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing. And he called one of the servants and asked him what these things meant. And he said unto him, Thy brother is come, and thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound. And he was angry and would not go in. Therefore came his father out and entreated him. And he, answering his father, said, Lo, these many years do I serve thee. Neither transgressed I at any time thy commandment, and yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends. But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf. And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. It was meet that we should make merry and be glad. For this thy brother was dead and is alive, and was lost and is found.